Hello, children. Today we are going to study or learn a new story, and it's very good. You must have heard of Lilliputians, yes, and must have seen the movie Jajantara Mamantara. So, similar is this story, that is the adventures of Gulliver. Adventure means some daring experience. For example, if you go to some waterfall, right? So if you are saying चलो कुछ तूफानी करते हैं, वाटरफॉल के नीचे बराबर नीचे जाके खड़े रहते हैं ताकि वो ज़ोर से पानी गिरेगा ऊपर, मज़ा आ जाएगा. So these are adventures. So Gulliver's Travels is an interesting book written by a well-known English writer. So Gulliver's Travel is the book. So this story is from a book, Jonathan Swift, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingen. Lilliput means the small, एकदम छोटे छोटे लोग, and Brobdingen means the giant public, the giant बड़े बड़े लोग. Though the character of Gulliver and these strange sounding lands are imaginary, as I told before, these stories are imaginary. Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life. इतना अच्छे से लिखा है कि लोगों को लगता है कि वो सच में हुआ है. Gulliver, the story tells us, worked as a surgeon on ships. So, what was Gulliver? He was a surgeon. As such, he made several voyages. Voyages means water trips. सर्जन कहाँ थे? शिप्स में. In May 1699, he sailed on the ship the Antelope. So what was the ship's name? Correct, Antelope. On the return journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. So what happened? तूफान आ गया. Yes, समुंदर में. उसकी वजह से शिप डूब गया. So what did he do? He swam. Swim करते करते अपना जान बचाया उन्होंने. Late in the evening, he found himself marooned on a strange land. So late in the evening, उन्होंने देखा कि वो कहीं अकेले पड़ गए हैं, अकेले हैं एक अनजान ज़मीन पे, लैंड पे. Weak and exhausted, he slept for about 9 hours. It was daylight when he awoke. So बहुत टायर्ड था, एग्जॉस्टेड था, तो सो गया वो 9 घंटे के लिए. और जब उठा तब उन्होंने देखा कि वो सुबह हो गई थी. Let us read what happened next in his own words. So this is been narrated to us by Gulliver himself in his book. First, Gulliver meets the Lilliputians. So see, मैं पहले आपको बता देती हूँ. Lilliputians mean the small creatures like us. See, हम लोग कैसे ऐसे बड़े हैं, उन लोग छोटे छोटे आदमी लोग हैं. स्मॉल लिविंग थिंग्स, सी ह्यूमन बींग्स. यस, एंड ही इज गुलिवर. देखो उसको कैसे पकड़ के रखा है. यस, आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड. हु इज आई हियर? यहाँ पे आई कौन है? मैं हूँ क्या? विद्या टीचर या आप लोग है? नो, करेक्ट. आई कौन है? गुलिवर. आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव. सो ही इज ट्राइंग टू गेट अप. उठने का कोशिश कर रहा है बट उठ नहीं पा रहा है. क्यों? करेक्ट, सब लोगों ने ऐसे उनको बांध के रखा है. Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. Arms, feet, सबको बांध के रखा है strings से. Thousands of strings had been passed across my body so that I could not move any part of me, but could only lie there on my back looking up at the sky. See your children, ऐसे बांध के रखा है कि वो उठ नहीं सकता है और सिर्फ स्काई को देख सकता है. करेक्ट. In a little time I felt something alive moving on my foot. थोड़े टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ मेरे पैर में कुछ ऐसा कोई भाग रहा है. Then it came over my body and up to my face. And slowly मेरे मुंह तक आ गया. Turning my eyes down as much as I could, I saw a man. He was not
half a foot high. जब मैंने देखा, कोशिश किया थोड़ा देखने को, तो मैंने देखा कि एक छोटा आदमी है, वो बहुत छोटा है, 1 फुट से भी आधा है. By his dress he seemed to be a soldier. Then there came 40 more following the first. उसके ड्रेस से मैंने पहचान लिया that he was a soldier. उसके बाद और 40 लोग पीछे से आए. I was so much surprised that I gave a great cry. तो ये इतना सरप्राइज हो गया, अरे इतने छोटे छोटे लोगों को देख के कि वो एकदम ज़ोर से चिल्लाए. Then they all ran back in great fear. ये छोटे छोटे लोग डर के मारे भाग गए. And as I was told later, some of them were hurt in jumping down from my side onto the ground. थोड़े लोग इतने डर गए कि यहाँ से जंप किए और उन लोग जख्मी हो गए. यस, तो इतना समझा आपको. गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस. नाउ सेकेंड पार्ट. गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री. नाउ गुलिवर इज थिंकिंग कि चलो अभी मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, मैं ये जो बांधा है उसको मैं कैसे तो भी करके निकाल दूंगा. आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट 1 arm अप फ्रॉम द ग्राउंड. बहुत कोशिश करने के बाद मैंने मेरा एक हाथ उठाया. आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड. सर भी उठाने का कोशिश किया. दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट. ये बाल, सर भी उठाने का कोशिश किया इसने, बट सबको कैसे सा बांध के रखा है, देखो ऐसे नेल से सब. यस, तो उसका सर बहुत दुख रहा था. आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन, बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम. इसने कोशिश किया उनको पकड़ने को, बट सब लोग भाग गए, तो किसी को भी पकड़ नहीं पाया. Then I heard a noise and felt pricking in my hand like that of 1,000 needles. Then मुझे कुछ आवाज़ आया और कुछ महसूस हुआ कि कोई मुझे नीडल पिक कर रहा है, नीडल से मार रहा है. I found that they were shooting arrows on me. फिर क्या समझा कि इन लोग arrows मार रहे हैं. I was afraid for my eyes. I put my hand over my face. तो क्या किया, ये डर गए, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनका हाथ से मुंह छुपा लिया. After this I thought that the wisest thing to do was to lie quiet till night. फिर उन्होंने सोच लिया इनसे पंगा लेके ज़रूरत कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता हूँ. I thought that then my hand being free, I could quite quickly set free the rest of my body. मैं सोचा अभी हाथ मेरा खाली फ्री हो गया है, मैं स्लोली पूरा बॉडी फ्री कर लेता हूँ. Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. Then there was one platform, जैसे कोई आया है इनसे बात करने. From his gestures, actions, I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me if I did as they told. फिर उसके भाषण से समझा, उसके एक्शन से क्या समझा कि उन लोग उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे अगर इसने उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं पहुंचाया तो. I too replied with gestures that I would remain quiet. I also told them that I was hungry. मैंने उनको प्रॉमिस किया कि यस, मैं आपको कुछ सताऊंगा नहीं, बट मुझे अभी बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने चाहिए. This is clear, children? Now we'll go to the third story. See, third part. Gulliver eats a giant meal. Giant means ज़्यादा, huge. Now see, you all know that Gulliver is like us and the Lilliputians are very small. तो उसके सामने हमारा एक रोटी का टुकड़ा भी उनको लगेगा कि बाप रे कितना बड़ा है और कितना खा रहा है. करेक्ट? सो यही है अभी. At once 100 men climbed up on my body and marched up to my mouth carrying food. सब लोग चढ़ के आ रहे हैं, एक एक जन खाना दे रहे हैं. इनका इधर देख रहे हैं, ब्रेड का लोफ कितना है, देखो काट में दे रहे, काट. द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट्स कितना छोटा सा रहता है, उतना वो ब्रेड का साइज था. सो आई एट 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. जब इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ये लिलीपुटियन, ये गुलिवर इतना खा रहा है और इतना फास्ट, तो सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए.
The Lilliputians were no longer afraid of me. They danced upon my body and ran to and fro. Lilliputians अभी डर नहीं रहे थे और उन लोग इसकी बॉडी के ऊपर डांस कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे. I could have caught at least 40 of them with my hands and thrown them down. ये गुलिवर बोल रहा है मैं चाहता तो मैं इनको 40 को एक साथ पकड़ के फेंक दे सकता था. But I remembered my promise to remain quiet. इसका प्रॉमिस क्या था कि ये उन्हें सताएगा नहीं. Indeed, I was surprised at that bravery, for I must have seen the greatest giant in the world. इसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ उनके ब्रेवरी से कि उन लोग इतने बड़े जेंट को कभी देखे ही नहीं रहेंगे, इतने बड़े आदमी को. उनके लिलीपुटियंस के वर्ल्ड में इतने बड़े आदमी को कभी देखा रहेगा क्या उन्होंने? नो. लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड. बाद में ये गुलिवर को इन्होंने फ्री करके थोड़ा सा बांध के इसको किंग के पास लेके गए. अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाई जॉइनिंग मैनी कार्ट्स. ये आदमी को लेके जाने को उनको एक बड़ा कार्ट बनाना रहेगा, राइट? तो छोटा छोटा कार्ट्स को मिला के उन्होंने एक बड़ा कार्ट बनाया जिसमें ये वो लेके जा सकते हैं. 900 men worked for 3 hours to put me on the cart which was drawn by 1500 of the king's finest horses. My God, कितने लोग थे इसको लेके जाने? 900. कितना घंटा काम किया? 3 hours वो कार्ट बनाने में. और वो कार्ट को किसने खींचा? 1500 किंग्स के बेस्ट हॉर्सेस ने. The city was just half a mile away, but the journey took almost a full day. सिटी एकदम नज़दीक था किंग का जगह जाने, बट एक दिन पूरा लगा जाने के लिए. नेक्स्ट, गुलिवर्स न्यू हाउस. अभी उन्होंने एक हाउस दिया इसको. कौन सा हाउस? उनके हाउस में ये रह सकता है क्या? नो, इसके लिए स्पेशल अलग हाउस था. The king came out to meet me. He came near and looked at me, but it was not thought so safe for him to climb up on me. King बाहर आए, किंग मिले मेरे से दूर से और सोचा कि मेरे ऊपर चढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो सेफ नहीं है. At the place where the cart stopped, there was an old church. तो जहाँ पे ये कार्ट रुका, इसको लेके गए, स्टॉप किए गुलिवर को. वहाँ पे एक चर्च था जूना. It was the largest building in the whole country. For several reasons, it had not been used as a church for many years. बहुत साल से वो चर्च को कोई यूज़ नहीं करता था, ऐसे ही पड़ा था वो. It had now been made ready for me to use as my house. The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide. बहुत बड़ा था, बट फिर भी कितना सा था? 4 feet high and 2 feet wide. So I could go in by going down on my hand. ऐसे झुक के एकदम जाना पड़ता था. One of my feet was set in a great ring on the end of many strong strings so that I could not get away but could only walk some distance outside my door. इसको नया घर दिया तो भी इसको बांध के रखा था थोड़े स्ट्रिंग्स से ताकि वो सिर्फ चले यहाँ वहाँ, बस थोड़ा डिस्टेंस. द कंट्री आउटसाइड लुक्ड लाइक अ गार्डन. उसका कंट्री जो था लिलीपुटियन का बहुत ब्यूटिफुल गार्डन जैसा था. आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वर कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म देम. थोड़े दिन बाद उनको समझ गया कि गुलिवर उनको तकलीफ नहीं देगा. सो आफ्टर आई अग्रीड टू कीप सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ द किंग, आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड. गुलिवर ने बोला कि मैं आपका रूल सब फॉलो करूँगा. सो उसको बोला कि ओके यू कैन नाउ रोम फ्रीली. आप आराम से यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हो. नाउ गुलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन. एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री आई आस्क्ड इफ आई माइट सी द सिटी. सो जब मेरे को फ्री किया उन्होंने तो उन्होंने पूछा आपको हमारा सिटी देखना है क्या? द किंग वॉज आई आस्क्ड इफ आई माइट. ओके, गुलिवर ने बोला कि मैं आपका सिटी देख सकता हूँ क्या? द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस. किंग को बहुत अच्छा लगा. ओह वाह, वेरी नाइस, मैं अलाउ करता हूँ आपको हमारा सिटी देखने. ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस. सबको बोला गया कि घर पे ही रहो. क्यों ऐसा बोला रहेगा? करेक्ट, ताकि ये छोटे छोटे अगर रास्ते पे आ गए और गुलिवर का पैर गलती से उनको लग गया तो उन लोग मर सकते हैं या जख्मी हो सकते हैं. वेरी गुड.
I then stepped over the wall and went very carefully along the two largest streets. एकदम केयरफुली बाहर से निकल के स्लोली जहाँ दो रास्ते मीट करते हैं वहाँ गया. All the windows were full of faces. देखो यहाँ पे घरों में सब लोग छोटे छोटे लोग देख रहे हैं और सब लोग सरप्राइज है. अरे वाह, इतना बड़ा आदमी आया है हमारे शहर में. And large number of people were standing on the top of the houses. घर के एकदम ऊपर भी खड़े हैं और देख रहे हैं. The king's house was just at the place where two great streets met. किंग का घर कहाँ था? जहाँ पे दो स्ट्रीट रास्ते मिलते थे. There was a beautiful garden on all sides of it. Lying down in the garden, I put my eye to the windows. तो नीचे लेट के मैंने विंडोज़ की तरफ देखा. मतलब ही देख लो उनका घर कितने छोटे छोटे रहेंगे हमारे लिए. The rooms inside were very beautiful. In one room I saw the queen and some of the young princes. तो गुलिवर ने देखा, क्वीन को देखा, प्रिंसेस को देखा. They were greatly pleased by my visit. So उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उनका सिटी आया हूँ. Yes children, this story is very interesting and अच्छा लगता है पढ़ने में. आप लोग इमेजिन करो कि इतना बड़ा कोई आदमी या आप लोग ही कोई ऐसे, एंड इफ़ यू हैव बीन टू सम लिलीपुटियंस प्लेस, तो आपके सामने छोटे छोटे मूंगी जैसे हैं इन लोग, तो आप लोग को उसको क्या करोगे और वो लोग क्या करेंगे, आपको सब इमेजिन करो. एंड इफ़ पॉसिबल सी द पिक्चर जजंतरम ममंतरम, उसमें भी वैसे ही है. एक बड़ा आदमी जाता है छोटे छोटे लिलीपुटियंस की जगह पे गलती से. Yes children, I hope you understood this chapter. If you have any doubt, let me know. बताओ मुझे. Okay? Thank you.